So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I welcome all the guests and all our regular participants for the session today. And this is in continuation, not in continuation, but this is in connection with the last two sessions that we have done. The topic today is anybody who saw that post? Forgiveness is letting go. So forgiveness is let go. So we're going to talk of what is forgiveness, how do we practice forgiveness, and why we should practice forgiveness in our life. So that is the importance of that. So that is the topic for today, and it is very well connected with the last two sessions that we did. So we talked about thoughts and intuition, and then we talked about emotional freedom. So we have already touched base on the thoughts and emotions. तो हमारे मनोमय कोश में जो thoughts and emotions की जो आप बोलते हैं जैसे फ्लड बाढ़ आ जाती है thoughts की, we are flooded with thoughts and we are flooded with the emotions. They seem to come from nowhere, and then suddenly it takes over and people are blown away or you can say swept away by the emotions, right? So how do we get freedom in this flood of thoughts and in this flood of emotions? So that is what we had touched about the thoughts and intuition, and we talked about emotional freedom. Today we are actually going to look at how do we let go. तो थॉट्स को, इमोशंस को कैसे लेट गो करना है, कैसे अपनी सफरिंग जो हमारी लाइफ में है उसका कोर, व्हाट इज द कोर ऑफ आवर सफरिंग, वी गोइंग टू लुक एट दैट, एंड हाउ डू वी गेट फ्रीडम फ्रॉम दैट. सो दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे. तो आप उसको फॉरगिवनेस बोल सकते हैं. फॉरगिवनेस का एक ऑर्डिनरी मीनिंग है माफ कर देना. जैसे बोलते हैं जाओ माफ किया तुम्हें, दफा हो जाओ, काइंड ऑफ स्टफ. वो भी माफी है, वो भी forgiveness है. That is very crude way. Other names for forgiveness is what? Letting go. When you let go, you give up. You give up your attachment, you give up your concerns, you give up your fear. All this is forgiveness. तो बाहर की दुनिया में हम बेशक forgiveness को बोलें कि मैंने आपको माफ किया या मैंने खुद को माफ किया, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? हम अंदर अपने चित्त को साफ कर रहे हैं. हमारे चित्त में गिल्ट है, हो सकता है, रिग्रेट है, रिसेंटमेंट है, हर्ट है, पेन है. तो उन सब से अगर फ्रीडम चाहिए, द ओनली वे इज टू forgive yourself and forgive others, and that gives you freedom, right? So I've said a little bit about forgiveness, so now I will leave it to the group to have their views and their ideas about what they think is forgiveness. So anybody who wants to share can go ahead. What is your take on forgiveness? And the topic is forgiveness is letting go. So that is the topic, but we can have any different views of anybody in that matter. So who would like to share? Maybe I can just put in my understanding. Maybe so I'm open to change. I think letting go is a larger set of internal action that anybody can experience and demonstrate. Okay. And one of them is forgiveness. So for example, letting go could be, let's say, if I'm trying to control a situation to work in my favor, so let go kar diya, it is not necessarily forgiveness. Okay. So forgiveness would be very specific form of letting go itself, where there is a clear disconnect between two consciousness piece, let's say two humans, and I think one forgiveness is required. So letting go is a larger set, and I think forgiveness is a subset of letting go. Okay, that's my understanding, but I'm saying that I'm open to change. Perfect. That is your understanding. Absolutely fine. Let's welcome Amitji's acknowledge Amitji for his views. Yes, great, so wonderful. Correct me if I'm wrong. Like, you understood, right? Letting go could be, let's say, letting go of a control of a situation to work in my favor. Absolutely perfect, Amitji. Winning a contract, getting a job. कुछ right या wrong नहीं है, आपका experience है, आपका expression है ना? How forgiveness or letting go is being expressed in your life is your own experience. Nobody can deny it, nobody can dispute it. So we will explore more into it and see how we can refine it and how we can actually, as you said, expand it to include everything. Inclusive जितना होगा उतना impact हमारी life में ज़्यादा होगा, है ना? So we will look into that.
Let's have other people share. Who would like to share? Hamid Sai ji, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नमस्ते। Namaskar, Amit bhai. So nice to see you and meet you. So good. Goodbye, brother. नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। हाँ नहीं वही मुझे ऐसा लगता है कि फॉरगिवनेस एक सेल्फ केयर है ना, बोथ द लेवल, इन द डीपेस्ट लेवल इफ विल सी, सो इट इज ए सेल्फ केयर, जिसको हमारे जो एंशिएंट शास्त्र ने एक्चुअली फॉरगिवनेस को भी एक तरह का लिबरेशन कहा है ना, और मॉडर्न साइंस जो है उसको हीलिंग बोलती है। सो इट इज बोथ द लेवल, इट इज सेल्फ केयर ओनली डीपेस्ट लेवल में, क्योंकि फॉरगिवनेस हमारा जो जो हमारा रियलाइजेशन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन पड़ते हैं, मतलब दैट अहम भाव, तो उसको लूजन करता है, कम करता है। Absolutely. सो दैट इज द Absolutely. बेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरगिवनेस, क्योंकि इफ विल सी इन द हायर पर्पज ऑफ द फॉरगिवनेस, इट इज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ वननेस। Absolutely. Perfect. Wonderful. Let's acknowledge Hamid ji. Great. और कुछ बोलना चाहेंगे सर? It's I've been listening, I've been reading your posts, so listening to you is always a great opportunity. So anything else you want to नहीं add? क्यों, मुझे एक चीज आपको पूछना था हाँ. कि आज ये टॉपिक आपने ऐसे अचानक सोचा या कैसा था, क्योंकि इसमें मुझे कुछ कोइंसिडेंस दिखाई दिया Okay. है ना। तो क्योंकि कल रात को मैंने काफी सारे फॉरगिवनेस के ऊपर में लिखा था कुछ, Oh, तो okay. आज सुबह अमित जी का पूरा मॉर्निंग में ही मैसेज आया कि आज फॉरगिवनेस का है, तो मैं बोला कि नहीं क्या है, थोड़ा एक बार मैं पूछता हूँ शशि जी को, Okay. है ना, कुछ ऐसा था कि आज का डे व्हाई यू हैव चोजन No, फॉरगिवनेस। actually, as I said, the last two sessions we were talking of thoughts and how thoughts are impacting us, how the tool of creation is important. So we talked about thoughts, then we talked about emotions. So now we were touching on how to be free from the thoughts and emotions which are actually plaguing us or giving us suffering and misery. So that was the whole point of connection. So ओके, we took up forgiveness or letting go. Huh? So that क्योंकि is कल it. एक्चुअली आपको थोड़ा जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कल जो सूफी परंपरा में ना, कल का जो नाइट था, दैट नाइट वाज द फॉर फॉरगिवनेस। Oh, wonderful. So that night was called night of forgiveness. Oh, wow. So लैलतुल बोलते हैं उसको, तो Okay. सबे बारात भी बोलते हैं। तो Uh-huh. कल रात भर जागर रहता है, आप साधना कर सकते हैं, यू जस्ट क्लियर योर ऑल थॉट्स, जो भी साल भर का आपका जो बैगेज है, आप कुछ उस तरह की चीजें हैं, एंड Very इट good. इज बोथ फॉर द लाइक डिवाइन के साथ भी कनेक्ट करना, आप खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी थ्रू फॉरगिवनेस। मतलब Fantastic. all the three parts you'll have to, you can connect with the oneness, you can connect with yourself, and you can connect with others through forgiveness. This is the whole idea, है Great. ना। तो वही था, तो मैं बोला चलो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। बिल्कुल है सर, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है. Let's Because we acknowledge all are Amit ji. interconnected, we all are interconnected, only thing is to we'll have to realize that. Correct. So that is the thing, because divine is already giving us the every time that intuition inspirations आते रहते हैं, लेकिन हम कितना अवेयरनेस में रहते हैं उसको कनेक्ट कर पाते हैं, that is whole idea. Absolutely perfect. Bang on. Thank Let's you. acknowledge Hamid Sai ji. Very good. Right. Anybody else who wants to share? Veena ji, Tarun, 1+ CPH 2707. ये कौन है? हाँ, अपने बारे में तो कुछ अभी बताएंगे? जो उन्होंने बोला ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। आई हैव सीन सो मेनी एक्सपीरियंसेस नाउ कि जो इंटरकनेक्टेडनेस वाली, जैसे कल ये बात कर रहे हैं सूफी वाली और फिर आज, तो ये बिल्कुल सही बात है एंड आई रियली बिलीव इन दिस, सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। और दूसरा फॉरगिवनेस के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि आई थिंक फॉरगिवनेस बहुत बाद मुझे ये पता लगा कि इट इज, आप माफी किसी और को नहीं, आप एक्चुअली अपने नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए माफ करते हो। मैंने गलतियां भी की, माफ करके मैंने सोचा कि चलो माफ कर दिया, अगले ने इतना बड़ा गलती की है, चलो माफ कर दिया, एंड देन आई वाज अगेन फ्रेंड विथ हिम और हर, बट देन आई रियलाइज दैट दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटजी। अगर किसी ने कोई गलती की है और अगर आप उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज करेंगे और बहुत बड़ी गलती है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो आपको उसको माफ, मतलब यू शुड नॉट बी द सेम। आई थिंक, मुझे लगता है कि माफी का मतलब ये नहीं है कि ठीक है आपने एक चोरी की, चलो मैंने माफ किया, तो उसको और भी करेज मिल जाता है कि उसको लगता है कि हाँ चलो ये ठीक है। बट आई थिंक माफी इज नॉट रियली टेलिंग हिम दैट इट्स ओके, व्हाटएवर यू डिड इज फाइन। नो, इट इज अबाउट just calming your nervous system that चलो ठीक है, let's move on, हो गया, you can't go back and change the past,
maybe by changing your perspective, you can live a better life. Your life force goes up. Okay. So that is all I want to say. Okay, perfect. So that is your understanding. That's my Absolutely right. experience. Let's acknowledge Yeah. Veena ji. Yeah, that's good. Right. Anybody else who wants to share? और कोई बताना चाहेंगे? Okay, so let's dwell more into it. So when we talk of forgiveness, so there are two aspects. Welcome, Vijay ji. We are talking of forgiveness, and that is the topic actually, forgiveness, and what is our idea and expression and experience of forgiveness in our life. Yeah. So when we talk of forgiveness, there are two aspects of it. एक तो है forgive myself, और एक है forgive the person who has actually done something which has caused me hurt and pain. यही दो तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं हमारे. अगर किसी के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया जिससे मुझे बुरा लगा, so I am hurt. That is one aspect of it. Second aspect is I did something which I should not have done, or I didn't do something which I am supposed to do. पास्ट में हुआ ऐसा, और उसका रिग्रेट या रिसेंटमेंट मेरे अंदर अभी भी है. गिल्ट है, रिग्रेट है, रिसेंटमेंट है, और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ या अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ. ये एक और सिचुएशन है. तो दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है हमारी लाइफ में व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरगिवनेस. एवरीबॉडी ओके विद दैट? अब अक्सर क्या होता है, वी आर टू हार्श ऑन आवरसेल्व्स. हम अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पाते और उस गिल्ट में रहते हैं. कितने लोग, बहुत लोग हैं जो गिल्ट में रहते हैं. 40 साल पहले मुझसे गलती हुई थी और वो अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को. तो आप जल रहे हैं अंदर, अंदर आग लगी पड़ी है. आपका अंतःकरण शांत होने की जगह बिल्कुल जल रहा है, full of poison. So we say regret and resentment is like, regret and resentment if you have in your life, that is like drinking poison hoping that the other person will die. जैसे बुद्धा ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि when you are, anger is something like you are holding burning coal in your hand to which you want to throw at the other person's face. और वो कब आएगा और कब मिलेगा और कब आप उसके ऊपर डालोगे, उससे पहले आप तो जल बुन के राख हो चुके हो, है ना. सो द एंगर इज एक्चुअली किलिंग आवरसेल्व्स, बर्निंग आवरसेल्व्स फर्स्ट, फिर वो दूसरे को जलाएगा, तो अलग बात है. तो उसी हिसाब से रिग्रेट है, रिसेंटमेंट है, ये सब पॉइजन है जो हमारे सिस्टम में है, जो हमारे सिस्टम को पॉइजन से बिल्कुल भर रहा है, विष से भर रहा है. तो हम पहले मरेंगे, फर्क तो हम ही पड़ रहा है, राइट. तो अगर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ या औरों को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो नतीजा क्या है, मैं जल रहा हूँ. ये क्लियर होना चाहिए. Then how to be free from that suffering and misery is the tool of forgiveness or the quality of forgiveness. कब तक फॉरगिव करते रहेंगे हम? अभी दूसरे की बात ही नहीं कर रहे. फॉरगिवनेस इज ओनली फॉर क्लियरिंग माय इनर चित्त. मैं तो इतना बोल रहा हूँ, अपने अंदर के चित्त को, अपने चित्त को साफ करने के लिए मुझे लोगों को फॉरगिव करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है. अपने आप को फॉरगिव करूंगा तो गिल्ट से फ्री हो जाऊंगा. दूसरों को फॉरगिव करूंगा तो मैं किससे फ्री हो जाऊंगा? एंगर से, हर्ट से, पेन से. क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि वो आके माफ़ी मांगेंगे फिर मैं उनको माफ़ करूंगा, वो शायद नहीं आने वाले हैं. तो उनकी अगर वेट करता रहूंगा तो मेरे तो जन्म निकल जाएगा. तो वो आए या ना आए, माफ़ी मांगे या ना मांगे, मैं उनको अगर माफ़ कर दूं, मैं फ्री हो गया, मैं अपने प्रिजन से फ्री हो गया, मेरे अंदर का जहर जो है वो निकल गया. एवरीबॉडी ओके विद दैट? दूसरे का क्या होगा हम बाद में देखेंगे, पहले अपना सिस्टम तो ठीक कर लें, राइट. So that is the basic idea of forgiveness for self or others. Correct? Now let us consider a situation. जब हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक इवेंट हुआ, एक इवेंट हुआ पास्ट में, ऑब्वियसली पास्ट में, अभी प्रेजेंट तो अभी चल रहा है तो अभी तो नहीं हुआ, पहले कुछ हुआ. तो पास्ट में एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के अराउंड कुछ स्टोरीज मैंने बना रखी हैं और उस इवेंट के अराउंड एक अनफुलफिल्ड डिजायर भी है, एंड दैट इज कॉजिंग हर्ट और पेन.
इन माई सिस्टम? यस और नो? सोचिए, देखिए, एक इमेजिनेशन, या पहले कभी किसी ने आपको भी हर्ट किया हो तो आप सोचिए क्या हुआ था। एक इवेंट हुआ, या दो जनों के बीच में, या आपने कुछ किया, आप इन्वॉल्व थे और उसके साथ एक और इन्वॉल्व था, करेक्ट? उस इवेंट में कुछ आपने स्टोरीज बनाई हुई हैं, आपने उसका कुछ मीनिंग बनाया हुआ है, या मैंने कुछ उसका मीनिंग बनाया हुआ है, और उसके साथ कनेक्टेड एक अनफुलफिल्ड डिजायर है, जिसकी वजह से वो हर्ट या पेन अभी तक मेरी सिस्टम में है। तो 3 एस्पेक्ट हुए। इवेंट, इवेंट के अराउंड एक स्टोरी, और उस स्टोरी और इवेंट से कनेक्टेड एक अनफुलफिल्ड डिजायर। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिस्टिंग्विश दीज 3 इन योर इवेंट? अपने लाइफ का एक इवेंट देखिए और उसमें देखिए कि ये तीनों एस्पेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आ रहे हैं तो यू कैन शेयर, बट इफ यू एक्चुअली लुक इनटू इट, you will find there are 3 aspects of it. One, event, what happened. Second, the story I have made out of it. कुछ कहानियां मैंने बना रखी हैं उसमें, राइट? कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं उसमें, और उसके साथ साथ एक अनफुलफिल्ड डिजायर होगी। मे बी आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट इट डिफरेंट वे, मे बी आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंटली, और मे बी आई वॉन्टेड सम एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी नहीं हुई। इन सब की वजह से मैं अपसेट हूँ, या हर्ट है, या पेन है। यस और नो? Anybody who wants to share? Because we are trying to look at how to dismantle the pain and the hurt. Correct? तभी हम let go कर पाएंगे जब हम उसके बेसिक पिलर्स को तोड़ दें। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं। Yes or no? Yes? Amit ji is saying yes. Anybody? Yeah, I had never done the breakdown of the situation this way. So one is the event which really happened, the other is the story that I've created around it, and the third is what I wanted to do after that, which means a desire which came out of this. It could be revengeful, it could be something else. But yeah, nice मारना way to- चाहता था, उसको नहीं मार पाया। कुछ बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया। Yeah. कुछ अवॉइड करना चाहता था, नहीं कर पाया। या तो कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, या कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था। तो किसी ना किसी वजह से एक डिजायर अनफुलफिल्ड रह गई है, जिसकी वजह से हर्ट या पेन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये 3 एस्पेक्ट होंगे, है ना? अब उस इवेंट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो पास में था, हो गया, मर खप गया। Correct. अब क्या कर सकते हैं? उसको डिसमेंटल करना है तो पहला इवेंट तो छोड़ देते हैं। इवेंट कैन, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। Correct. Only thing is, what you can do is, the memory that you're carrying in your mind can be healed, or can be, you can say, with some techniques of maybe NLP or some healing techniques or hypnotherapy, you can do something about that event in the memory, जो आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है। इवेंट का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस इवेंट की जो मेमोरी पड़ी हुई है, उस इंटरनल इवेंट को हम चेंज कर सकते हैं। उसकी हम बात नहीं करेंगे आज। हम क्या बात कर रहे हैं? उसके रिलेटेड सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं। उसके रिलेटेड जो स्टोरी मैंने बनाई है, अब ये स्टोरी किसकी है? मेरी है। मैंने, किसने मीनिंग दिया? मैंने दिया। अब उस इवेंट का मैं कोई और भी मीनिंग दे सकता हूँ, क्योंकि वो हुआ मान लीजिए 20 साल पहले, 20 years before that event happened, or maybe 1 month before that event happened. Today, I am not the same person who was involved in that event. Yes or no? और अगर 20 साल हो गया तब तो definitely I am not that person right now. Correct? So I have outgrown that event, and I can outgrow the meaning that I have given to that incident. Yes or no? That is easier? Yes. That is in my control. तो वो मैं कर सकता हूँ। इवेंट को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके अराउंड जो मैंने स्टोरी बनाई हुई है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। करेक्ट? एंड थर्ड, द अनफुलफिल्ड डिजायर विच इज अलॉन्ग विद इट। करेक्ट? ये किसका है? ये भी मेरा है डिजायर। तो मैं इस डिजायर पे भी काम करके उसको छोड़ सकता हूँ। और ये जो भी स्टोरी बनाई है, या तो एक थॉट है, या एक इमोशन है। ये एक थॉट है या एक इमोशन है। सोचिए, देखिए, यही दोनों हैं जो हम मुझे परेशान कर रहे हैं अभी भी, अगर है तो। So if there is some way we can give up or we can let go, हमने किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है। Now the thought is not, you can say, hovering in my mind. I am holding on to that thought. I am holding on to that emotion. So if I simply let go, मुट्ठी बंद करने की जगह मुट्ठी खोल दूं,
और उसको लेट गो कर दूं, आई विल बी फ्री। सोच के देखिए, जब तक हर्ट है तब तक फॉरगिवनेस की जरूरत है। आप पूछो मैं कितना फॉरगिव करूं लोगों को, जब तक आप हर्ट हो रहे हो तब तक फॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। In fact, you should always be forgiving. One should always be forgiving so much that you become immune to hurt. अपने लाइफ में सब लोगों को फॉरगिव कर दो तो आप इम्यून हो जाओगे। कोई इतना पावरफुल होगा ही नहीं कि आपको हर्ट कर सके। सोचिए देखिए, फॉरगिवनेस इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन यू आर हर्ट। इफ यू आर नॉट हर्ट, वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फॉरगिवनेस? यस और नो? तो प्रॉब्लम कहाँ है? अपनी हर्ट और पेन का इलाज हमको ढूंढना है, और ये मैंने खुद किया हुआ है अपनी स्टोरी से और अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर से। यस और नो? जस्ट डू अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन, यू विल बी क्लियर ऑन दिस। यस, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? विजय जी, तरुण, एंड लेट मी वेलकम पूजा जी एंड गुरकीरत जी। यो, गुरकीरत जी भी हैं, वेरी गुड। यस, so ultimately it boils down that the pain and hurt is only related to my thoughts, my emotions, my stories, my unfulfilled desire. तो आपके इवेंट में कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल है? सोचिए देखिए, थॉट्स, 1000 थॉट्स, 60,000 थॉट्स ए डे आते हैं जाते हैं। व्हाई आर वी लैचिंग ऑन टू दैट थॉट? We should have the freedom to choose our thoughts. We should have the freedom to create new thoughts. Yes or no? We saw that in that session. एक इमोशन है, उसको हमने पकड़ लिया है, उसको मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है अब यहाँ पे? भगवान माफ ना करे या ना करे, आपने उसे पकड़ रखा है, उस इवेंट को, और आप उस इमोशन में पेन और हर्ट को पकड़ के रखे हुए हैं। व्हाई डू यू वांट टू बी ए विक्टिम? विक्टिम ईगो काम कर रहा है, आपको दिख रहा है? मेरा विक्टिम ईगो उस इमोशन को छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे ही मैं अपने आप को फॉरगिव करूंगा, उनको फॉरगिव करूंगा, वो इमोशन चला जाएगा, विक्टिम ईगो की पावर खत्म हो जाएगी। आई विल बी फ्री फ्रॉम माई patterns of the ego of being a victim. How many of you can see that? It's very powerful if you can see that. You will be free right now. 20 साल से अगर नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा। Only thing, you should be willing and ready to let go of your thoughts and emotions which are hurting you. क्योंकि उन्होंने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ के रखा है। सोचिए देखिए, अगर मैं हर्ट हूं, मैं सफरिंग में हूं, मैं मिजरी में हूं, तो मैंने किसी थॉट या इमोशन को पकड़ के रखा हुआ है। थॉट और इमोशन में इतनी पावर नहीं है कि वो मुझे पकड़ के रखें। I am holding on to it. I am not letting it go. That's why I said letting go, छोड़ देना, forgive कर देना, give up, move on. All these are very, very closely connected, and one can easily be substituted for the other. Otherwise, it's simply a question of how it is experienced and expressed in your life. That's fine. But it all comes to the same thing. आपको अपने अंतरकरण को शुद्ध करना है, चित्त को निर्मल करना है। जो चीज हार्डन्ड कर्मस के जैसे बैठे हुए हैं, उन इम्प्रिंट्स को छोड़ना है। That is how you become free. That is how you become free from the clutches of your ego patterns. Yes. So let's have some people share. I'm speaking a bit too much. No. Let's have some sharing. Vijay ji, Gurkirat ji, Pooja ji. Anybody who wants to share? Veena ji, Tarun ji. Yes. How many of you agree with me and how many of you disagree with me? Those who disagree are most welcome. Yes, Vijay ji, go ahead. Yeah, absolutely, sir. Absolutely. You're right. I आपका completely agree with you. ग्रेट। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, या कुछ और बोलना चाहते हैं तो ऐड करिए। ये मेरा एक्सपीरियंस तो सर ये है कि कई साल पहले मैंने रियलाइज किया और अपने आप को एक्सेप्ट किया द वे आई एम। तो बेसिकली सबसे पहले तो अपने आप को माफ किया, और वो कंटिन्यूअल बेसिस पे रहता है। तो वंस आई रियलाइज दैट आई एम नॉट परफेक्ट,
I don't expect anybody else to be perfect as well. तो उससे वो फीलिंग आई कि भाई सब एक ही हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. We are all passing through as actors, watching things happen all around us. तो किसी बात से कोई नाराज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, you know. So from that day onwards, which was perhaps in the year 1991, तो नॉर्मली मेरे को किसी पे अगर क्षण भर के लिए गुस्सा आता भी है तो एक्सेप्टेंस इज वेरी फास्ट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो नथिंग स्टेज. So since 91, so you're already practicing the you can say the wisdom of spirituality way back, huh? Since 30 I years mean, or it so. happened, as you rightly said, it happens instantaneously. So once you realize that everybody is the same, there is no difference, तो ये सब तो ड्रामा तो चलता ही रहेगा. कभी गुस्सा आएगा, कभी प्यार आएगा, but you keep sending love and light to everybody. Absolutely. And when there is acceptance that you are also a problem and others can be a problem, तब कोई इशू नहीं रहता. Very good, बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Vijay ji. So wonderful words of wisdom. So it's basically saying that you know कि इंसान है तो जैसे बोलते हैं ना मिट्टी का बना हुआ है, गलतियों की मूर्ति है, तो गलतियां कर सकता है, दैट्स फाइन. तो मेरे से गलती हो सकती है, मैं खुद को भी माफ करूँ ना. व्हाई शुड आई बी हार्ड ऑन माई सेल्फ? सो आई शुड हैव लव एंड कंपैशन फॉर माई सेल्फ. And if when I can forgive myself, and that is the key, when I can forgive myself, I'll be in a much better position to forgive others. अगर मैं खुद को ही माफ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बाकियों को माफ करने में बहुत दिक्कत हुई. Look at it that way. Because अंदर अगर अंदर आग लगी पड़ी है, मतलब अंदर से मैं जल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, और यही चीज बाहर नजर आएगी. आउटसाइड वर्ल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड वर्ल्ड, राइट? तो बाहर के जो लोग आएंगे वो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि आप उनको माफ नहीं कर पाओगे. तो फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काम योर इनर वर्ल्ड. अंदर अपने जो पॉइजन बचा है उसको हीलिंग से हटाइए, कुछ भी टेक्निक्स लगाइए, अंदर से शांत हो जाइए, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी. एंड देन अगर थोड़ी बहुत इधर उधर की डिस्टर्बेंसेस आ भी गई, यू विल बी एबल टू इजीली फॉरगिव देम, एंड यू विल बी इजीली एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस कि ठीक है यार, मेरे से गलती हुई है, उनसे भी हो गई ना, कोई बात नहीं, जैसे विजय जी ने कहा अभी. बट इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट डजंट कम जस्ट लाइक दैट. अदरवाइज सो देयर वोंट बी. कलयुग नहीं होता, सतयुग होता ना, फिर सब प्यार से रह रहे होते. अभी तो आप सड़क पे गाड़ी चला लो, रोज अखबार में आता, थोड़ा सा टच हुआ, गोली मार दी, रॉड निकाला, सर फोड़ दिया, 5 लोगों ने मिलके एक को मार के जान के फेंक दिया. तो ये सब क्यों हो रहा है? एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है. करेक्ट. अंदर से जले पड़े हैं तो बाहर भी लोगों को जलाएंगे ही ना. बाहर नेचर का बुरा हाल कर रखा है हमने, पेड़ों को काट काट के जंगलों को साफ कर दिया है, पेड़ों को काट दिया है, सॉइल खराब है, रिवर खराब है. क्यों हो रहा है ये सब? अंदर आग लगी पड़ी है. अंदर अपनी हंगर खत्म ही नहीं हो रही है. कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, कंक्रीट जंगल बना दिया सबको. क्यों? अंदर आग लगी पड़ी है. अंदर शांत हो जाएंगे, बाहर भी शांत हो जाएंगे. तो शशिधर जी, स्टीलिंग योर वर्ड्स, जैसा आपने बोला, पहले तो अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट अगर हो जाए, आमने सामने क्या हो रहा है, कीप स्प्रेडिंग लव एंड लाइट, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके होएगा. एब्सोल्युटली. अंदर आग बंद हो जाएगी तो आप बाहर भी आग लगाना बंद कर दोगे ना. बल्कि आग लगी हुई है, बुझा भी सकते. लव एंड पीस एंड जॉय जैसे भेजिए सबको, सब शांत हो जाएंगे. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. बट उसके लिए पहले अपनी आग को बुझाना होगा. आप खुद तो जलना बंद करो ना. करेक्ट. तो इट इज ऑलवेज एन इनसाइड आउट अप्रोच. All the management gurus also say, but it's much more than that. Outside world is only a reflection of what is inside. असली दुनिया तो आपके अंदर है. अंदर की दुनिया को इसलिए शांत करना जरूरी है. आपको बाहर सब शांत हो जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, इस जन्म में नहीं होगा. इस जन्म में क्या, किसी जन्म में नहीं होगा. हमको अंदर से पहले शांत होना है, फिर उस शांति को हम बाहर मैनिफेस्ट कर सकते हैं. So we fill ourselves with love, peace and joy, and then radiate that love, peace and joy to all the people in our life, and then you can create an atmosphere of Satyug. Otherwise तो बाहर की मारधार तो चलती रहेगी. बाहर तो डिसऑर्डर होगा ही होगा. उस डिसऑर्डर में मैं ऑर्डर में रह सकता हूँ. उस डिसऑर्डर में मैं क्या पीसफुल रह सकता हूँ. दैट इज अ चैलेंज. यस. एंड दैट कैन कम विद द स्पिरिचुअल विजडम. Yes. And that is why we need to let go.
तो let go, forgiveness, give up, मैं इन सबको एक ही मानता हूँ. Of course, different expressions. So Amit ji can have a different experience of that, so which is perfectly fine. हम सबका experience अलग अलग होगा, लेकिन ultimately we are cleansing our चित्त. That is the bottom line. Do whatever. कौन से योग मार्ग में जा रहे हो आप, ज्ञान योग पकड़ो, राज योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, कुछ भी, हठ योग, जो मर्जी योग मार्ग आप लो, जो मर्जी साधना करो, अगर आपका चित्त साफ हो रहा है, ग्रेट, दैट इज द पाथ. Yes, so let's have some more people share. Welcome, Leslie. Yes, anybody who wants to share? Gurkirat ji, Tarun ji. कौन बोलना चाहेंगे? पूजा जी. Yes. Then maybe I can. Yes, welcome, Amit ji. Go ahead. So I'm getting tempted. There are two quick points that I wanted to share. One is directly related to what we just talked about. So I had read a quote in Hindi about 4 or 5 years ago, and I think Osho also talked about this. वो हिंदी में ही बोलूँगा मैं. And that helped me a lot in terms of really integrating forgiveness thoroughly, really deeply. वो ये था कि किसी के प्रति द्वेष या किसी को दुख देने का जो बीज है, वो कहाँ होता है? वो हमारे अंदर होता है. उस बीज से जो पेड़ बनेगा, वो कहाँ उगेगा? वो भी हमारे अंदर उगेगा. और उसके बाद जो उसका फल गिरेगा, वो कहाँ गिरेगा? वो भी हमारे अंदर ही गिरेगा. तो जब ये चीज पढ़ी, इसके बाद थोड़ा सा एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ ह्यूमर टू इट, तो ये निकल के आया मेरे साथ कि जब हमारे चीज में अगर हमारे अंदर एक चित्त में अगर कोई द्वेष है, किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा है, तो या तो चीज हमारे कंट्रोल में हो, तो मैं उन दिनों ये समझ आता या तो सामने वाले का सर फोड़ दो, पर अगर नहीं फोड़ सकते हो, अगर कुछ नहीं कर सकते हो सिचुएशन का, तो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में ये चीज बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट हुई कि वो हमारे अंदर ही गिरेगा फल. तो इट इज इन पर्सनल इंटरेस्ट दैट वी नीड टू. And I think it was really powerful. I mean, I still don't remember the exact verbatim quote, but yeah, I think you got it. And the other thing, which is which has not been talked about in this session till now, but otherwise we all know we are all in spiritual journey. हमने ये भी सीखा पढ़ा समझा है कि everything happens for our betterment, everything happens for our good, everything happens what life has to offer to us, what we deserve. जो मेरी क्लाइंट भी है WHHFG, यानी कि whatever happens for good. तो ये एक और एक कोट लग जाता है when we are in the process of learning and integrating forgiveness, कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. देखते रहो, आने वाले कुछ हफ्तों, महीनों या साल में पता लगेगा कि whatever had happened was actually for our good. And I think all of us today, we are about 13 people, we all can look back in our lives. जो भी लाइफ में कुछ खराब हुआ था आज से 5, 10 या 20, 30 साल पहले, we would be able to find some positive outcome because of which we have developed certain great qualities, spiritual qualities today. So for me, these two understandings were really powerful. And I was thinking, in the beginning of the session, कि event को सोचना है, कोई story क्या बनाई और revenge. तो touch wood, thankfully, I do not have any such incidents or a story or event which I need to work upon today. So absolutely clear chit from this perspective of forgiveness. Absolutely perfect, wonderful, Amitji. That's a great journey that you have completed, and I mean, having reached here, you have gone through and you can say outgrown all these events, which is very good. But if you look at that nature of that hurt, that's what I was trying to say. It will always have 3 components. So if you can look at that, it will be easy for us to dismantle that at any point of time. आगे भी अगर आ सकता है तो हम उसको dismantle कर सकते हैं, provided we know that उसका structure क्या है, उसका anatomy क्या है ना? So it won't come as a shocker to us. That was the whole idea about it. Yeah. So wonderful, Amitji. That's great. Yeah, sure. Thank you. Yes. Anybody else who wants to share? Yes, Leslie, your take on forgiveness, letting go, giving up. Maybe I can add a couple of more points if somebody else wants to talk. Good enough. No, go ahead. People will share at their own time. That's fine.
So two more things which really helped me in this journey. So once again, it is not being talked about in this session. So working on, so when we meditate, then specifically when we work on the chakras, then all of us and most of us know, for example, working on the heart chakra, when we purify heart chakra, there are various techniques. So some people know that I work on color, work with color, hand mudra, music, mantras. So हार्ट चक्र एक ऐसा चक्र है जिस पे हम इस तरह से काम करें तो फॉरगिवनेस बहुत जल्दी इंटीग्रेट होती है सिस्टम में. So this is one way to learn and integrate forgiveness. And the other thing, the last thing perhaps, how do we remember कि forgive करना है और कैसे करना है? जो हम बातें कर रहे हैं अभी, it's been 40 years. How do we make sure that it always keeps on reminding us all the time whenever needed? So सिंपल सी चीज है, मैं कई बार बात कर चुका हूं इस बारे में कि हमको अपने आसपास सराउंड कर लेना चाहिए इस तरह के सिग्नल से या मैसेजेस से या विजुअल से या फॉर एग्जांपल so various passwords that we have, हमारी DPs होती हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, इंस्टा, FB, व्हाट्सएप की DPs हमारे आसपास. दिस रूम हैज वेरियस कोटेशंस ऑन दीज लाइंस, फॉरगिवनेस पे है. तो जब ये सामने चीजें लिखी होती हैं व्हिच आर मे बी ऑन वर्क स्टेशन or maybe wallpaper of the computer, laptop, mobile phone. तो ये चीजें constantly एक तरह से हैमरिंग का काम करती है. So whatever change that we want in life, surrounding ourselves with such visuals, quotations, and even keeping some passwords, computer का password, कुछ files का password, email IDs का password, it works tremendously well. Otherwise हम भूल जाते हैं कि ये चीज कैसे याद रखें. For example, मेरी फाइल का password ही है WHHFG. And it is not a very sensitive file, so I'm sharing the password, but a lot of people in my family also know this. तो उसको मैं कम से कम पिछले 4-5 सालों में हजारों बार टाइप कर चुका हूँ. WHHFG, 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 whatever happens so good. But so it got into the muscle memory and subconscious. This is one trick or hack you can always use. Yeah. So we will always have some tools or some practices which are like a visual board kind of a thing. So विजुअल्स अगर रहेंगे तो आपको रिमाइंडर्स अच्छे मिल जाते हैं. एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट. यस, ग्रेट. लेट्स एक्नॉलेज अमित जी. वेरी गुड. Thank you. That's it. Yes. Anybody else who wants to share any new point? Yes, Leslie, go ahead. When I was young and I was told about it's good to forgive. It's and in Christianity, forgiveness के ऊपर काफी बात करी जाती है. Jesus Christ is one of the really looked up regarding this forgiveness. Avatar of forgiveness. Yes. Right. But for me, forgiveness actually came to light when जब तक बताते रहे तब तक नहीं समझ आया. It's only came to light when in my own experience of holding hurt and problem, and it took a lot of years, when I started experiencing कि वो hurt को अगर carry करते रहते हैं तो it actually creates venom in our own self, in our own system. So that is when you realize कि you need to let go of this particular part, and then you need to forgive. But for forgiveness is not an act, rather forgiveness is a choice for me. And once you realize कि तुम जो भी अपने अंदर लेते हो and अगर तुम उसको hold करते हो, then it becomes your system and it's never fresh. It's always stale. It's always old. So forgiveness is like actually recreating freshness ongoingly in life. So forgiveness is that, and letting go तो पूरा मूल मंत्र ही लाइफ का letting go है, because पूरी लाइफ ही letting go पे टिकी हुई है. अगर let go नहीं करोगे तो नया तो आ ही नहीं सकता. And once you realize it, तो बहुत automatically ये सब कुछ realization और experience के बाद it comes as a choice. Not के because किसी ने बताया है तो करोगे, बट अपने ही एक्सपीरियंसेस से तुम्हें रियलाइज होता है कि लेट गो तो एक लाइफ का प्रोसेस है. यू हैव टू गेट इन द न्यू थिंग इन लाइफ, एंड फॉरगिवनेस इज डेफिनेटली
व्हेन यू एक्सपीरियंस कि फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, तब तक उससे पहले समझ नहीं आता फॉरगिवनेस, बिकॉज इट कीप्स रीसर्फेसिंग, द हर्ट कीप्स रीसर्फेसिंग अगेन एंड अगेन. उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, ऐसा कहना नहीं चाहिए था. इट्स ओनली लेटर दैट यू रियलाइज कि दूसरे बंदे ने भी वो तब किया था क्योंकि उसके प्रारब्ध या उसके अपने कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो उस तरीके से एक्ट कर रहा था. सो इट इज माय परसेप्शन कि मुझे लग रहा है कि उसने मुझे हर्ट किया. Absolutely. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ के सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली होने लगती है, एंड यू डोंट होल्ड ऑन टू थिंग. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. Fantastic, fantastic. Very good experience. Thank you, Leslie, for sharing that. Let's acknowledge Leslie. Very good, very powerful. Yes. Anybody else wants to share your experience of forgiveness? Why it is important? And one thing very good that Leslie said is, like letting go is a part of life. जब तक आप ब्रीथ आउट नहीं करेंगे, ब्रीथ आउट भी तो लेटिंग गो ही है ना. जब तक आप ब्रीथ आउट नहीं करेंगे, आप ब्रीथ इन कैसे करेंगे? यू कांट कीप ऑन ब्रीदिंग इन. पहले ब्रीथ आउट करोगे ना. कुछ क्रिएशन के लिए, जैसे ब्लैक बोर्ड पे भी अगर टीचर ने पूरा भर दिया है, तो कुछ नया क्रिएट करने के लिए पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करना पड़ता है ना. वो भी एक तरीके का लेटिंग गो ही है ना, गिविंग अप. तो हटा दिया, अब स्पेस बन गई, अब नया क्रिएट करो. सो लाइफ इज ऑलवेज ए प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो एंड देन क्रिएट. ब्रेथ से भी समझ सकते हैं उसे, किसी भी लाइफ में एक्टिविटी आपकी होगी तो आप उसे समझ सकते हैं. यस, वेरी वेल सेड. ओके, गुड. कौन बोलना I चाहेंगे? want to talk about a perspective I heard today. Yeah, go ahead. She said that you don't think that you are living your life. Life is happening through you. So life is anyways happening and you are just a channel. So if I think about this कि मतलब लाइफ तो चल ही रही है, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, तो फिर फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मतलब जो भी अगर कोई अपना पार्ट कर रहा है तो वो तो सिर्फ एक चैनल ही है ना. Like in a movie, we don't feel bad about the villain because we know he's playing his part to Correct. make the story beautiful, stunning, memorable. Like Mahabharata is so stunning and beautiful because everybody was playing his part and they played so well that even now we remember and we take the idea. So मतलब मुझे लगा ये मैं डिस्कस करूं कि लाइफ मतलब लाइफ बिकम्स इजी अगर हम ऐसे सोचे तो. लाइफ बिकम्स ईजियर ऐसा सोचे तो. ओके, राइट, आई गेट दैट. सो आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट. सो लेट्स एक्नॉलेज वीना जी फॉर दैट. या वीना जी, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपको कि लाइफ को जीने के दो तरीके हैं. इट इज अ चॉइस, राइट. एक है कि हम ईगो के प्रभाव में आके या अहंकार के प्रभाव में आके कर्तापन में जिए. कर्तापन में जी रहे हैं तो क्या है, मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं उसका इफेक्ट भोग रहा हूं और उसके अगेंस्ट मेरे को सफरिंग एंड मिजरी मिलेगी या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, जो भी मिलेगा. दैट इज वन वे ऑफ लिविंग लाइफ. 99% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इट दैट वे ओनली, राइट. आपने जो बोला कि मैं चैनल हूं एंड द लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी, दैट हैपेंस व्हेन यू बिकम साक्षी. तो कर्तापन से साक्षीपन की जर्नी ही स्पिरिचुअलिटी है. अपने कर्तापन, अपने अहंकार को अगर आप डिवाइन में डिसॉल्व करेंगे, दैट मीन्स आई सरेंडर द ईगो इन मी टू द डिवाइन इन मी. दैट इज द स्पिरिचुअलिटी वी आर टॉकिंग ऑफ. तो स्पिरिचुअलिटी अगर एक लाइन में बोलूं मैं, तो जर्नी है कर्तापन से साक्षीपन का. आप जो बोल रहे हैं वो साक्षीपन में आएगा, बट दैट इज एडवांस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट यू हैव रीच्ड. चेतना के उच्चतम स्तर पे आप साक्षी बनेंगे. उसके शुरू के स्तर पे आप साक्षी नहीं बन सकते क्योंकि ईगो का प्रभाव बहुत है. अभी अमित जी ने कहा हार्ट चक्रा पे फॉरगिवनेस पॉसिबल है. व्हाई डू वी से दैट? लोअर 3 चक्रास में क्यों पॉसिबल नहीं है फॉरगिवनेस? क्योंकि वहां ईगो का पूरा, जैसे बोलते हैं ना, विलन का पूरा अड्डा है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट लोअर चक्रास इज द हाउस ऑफ ईगो. वहां कर्तापन यानी कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, उसका पूरा डोमिनेंस है. आप साक्षीपन में आते ही तब हैं जब आप हार्ट चक्रा से ऊपर के कॉन्शियसनेस में आते हैं, यानी कि चेतना के उच्चतम स्तर पे जाएंगे. तो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा के कॉन्शियसनेस में आप बात कर सकते हैं साक्षीपन की.
एंड एक्चुअल साक्षीपन कम्स एट द थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र पे, जब आप स्थित प्रज्ञ होते हैं. Right? Otherwise, it is a theory, it is a concept, it is not going to change our life. तो चेतना के उच्चतम स्तर पे जाना ही स्पिरिचुअलिटी है. तो जर्नी अगर एक लाइन में मैं बताऊं, जो आपने बताया, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो जर्नी है. इट इज नॉट अ थॉट. इट वोंट मेक लाइफ इजी. कंसेप्ट्स डोंट मेक लाइफ इजी. प्रैक्टिस एंड experiencing and expressing that in life, when it becomes a way of life, then it will transform your life. I mean, I can elaborate my experience if you are interested. Yeah, sure. You can. Welcome to share that. No, so I mean, I had been supporting someone in the family for a very, 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 very long time. And most of the times I didn't feel like supporting also. But I support, and that's how I got into spirituality. So to understand his personality, it's been actually 35 years. बट मैं सपोर्ट कर रही होंगी 4-5 साल से, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी छूट गई, फिर भी आई वाज लाइक हेल बेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सनालिटी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग. बहुत सर मारा मैंने. आई थिंक with a lot of courage, today I clearly told him, please manage your life yourself. So I reached that level, I think, because ये मैं समझने आया मुझे कि कॉन्शियसनेस मुझे नचा रही है, या कैसे भी कर लें कि शायद मैं सीखना चाह रही हूँ, इसीलिए ही इज बिहेविंग लाइक दैट. बट आज मैंने बहुत करेज से बोल दिया कि आप अपनी लाइफ खुद जिए. यू आर केपेबल इनफ टू मैनेज योरसेल्फ. So Veena ji, let me ask you something. Are you talking of a relationship breakdown in your life? मतलब my extended family. Okay. So let me tell you this way. Not my immediate family. First of all, as I said, life always flows from inside out. Okay? आपके अंदर अंतरकरण में जो दुनिया चल रही है, वही एक्चुअल आपकी दुनिया है, वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है. अगर बाहर आपका किसी एक इंसान के साथ जो भी हो, XYZ, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बन रही है, then there is a very strong karmic account with that person, and you need to heal that relationship. First you need to heal yourself, then you need to heal that relationship. Send energy of love, peace and joy for yourself and others. Only then the relationship will get healed. You are saying आज के बाद तुम अपना देख लो is like being indifferent, I would say. Healing करो, उनको अलग रखना, अलग रहने दो, that is fine. But the energy you should be radiating to the other person should be of a love, peace and joy if you are a healer. And as a healer, that's what I teach people. That is what I practice in life. Yeah. So look at it that way. I agree, but I wanted. No. See, I will not continue this discussion because you are in a different level right now. नहीं, but all I'm trying to say empowerment के लिए तो मेरे को कई बारी ऐसे करना पड़ता है. When I know that the person can do it and not doing it, then I tell that person up because I know that the person can do it. Why you know is what that saying? person's? You have to ask. See, I'm not giving you any solution. All I'm trying to say is you have to tell that person, why are you so much dependent on me? Or you ask yourself, why is that person so much dependent on you? Make them independent. एक गुरु भी जब अपने शिष्य को सिखाता है, उसके बाद वो चाहता है कि ये नहीं चाहता शिष्य उसके साथ जिंदगी भर लटका रहे. इंडिपेंडेंट हो जाओ, आगे बढ़ो. किसी को ज्ञान देने का मतलब यही है कि आप उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दो, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे चलाए. किसी पे आश्रित नहीं होना है, किसी को आश्रित करने भी नहीं देना है अपने आप को. You don't want to take dead luggage on your back, right? Don't do that. Your spiritual journey is your journey. His spiritual journey or her spiritual journey is her journey. Guide them and ask them to take responsibility and move on in life, not move away. आप इस पे सोचिए, बाद में अलग से बात कर सकते हैं हम इस पे. But right now I will not ponder much on this. Anyway, thank you. Yeah. Look at that. Okay, let's acknowledge Veena ji. Very good. Yes, anybody else who would like to share? Gurkirat ji, Amit ji, Anup ji, Pooja ji, anybody who wants to share? We are reaching the scheduled close time. जी. So the interaction has been good this time, and a lot of things opened up for people, I suppose.
So yes, who would like to share? हाँ, अब जस्ट एक छोटी सी बात याद आई तो मैं बोला शेयर कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे फॉरगिवनेस का मुझे ऐसा लगता है कि हम तो सब चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम में क्या होता है कि हमारे जो डे टू डे हैबिट्स होते हैं तो वो हमको करने नहीं देते और एक ऑटोमेटेड मोड में हम चलते रहते हैं। जो हमारे सबसे मतलब फैकल्टीज हैं, जैसा कि रिफ्लेक्शन करना या बुद्धि विवेक का यूज करना, वो भी हम नहीं करते। हम एक रूटीन पैटर्न लेके चलते रहते हैं। तो उससे क्या हमारे जो मेमोरीज हैं, जो स्टोरी क्रिएट किया है, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो ब्रेक ही नहीं हो पाते। हम्म। तो इसके लिए वो चलता ही चलता रहता है। सो एवरीडे अगर हम रिफ्लेक्ट करें, हमारा बुद्धि विवेक का यूज करें, बोथ द थिंग्स, जैसे कि हम बचपन से सुनते आते हैं, जो हाँ इनर एंकरिंग होता है शास्त्र बेस में, या जो भी बिलीफ सिस्टम्स है कि जो भी होता है उसके इशारे से होता है ना, या हम डुअर नहीं है, समवन एल्स इज डुअर। तो इस तरह के बचपन से हमारे मतलब एटलीस्ट भारत संस्कृति में तो सबके साथ में ये चीज़ें जुड़ा हुआ है। तो हम ये Yes. सुनते हैं लेकिन कभी इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, कभी इसको एक मिनट भी सोचते नहीं है। इसको डिस्क्रिमिनेशन जो पावर है हमारे पास में, उसका भी यूज नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में सारे लोग दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं सारे चीजों के लिए, लेकिन अपने ऊपर में कभी यूज नहीं करते, है ना। अपने ऊपर में मतलब हायर कॉन्शियसनेस, चेतना की तरफ जाने के लिए, जबकि बुद्धि विवेक हमारा बहुत बड़ा हथियार है Yes. जिससे हम ये चीजों को भेद कर सकते हैं, है ना। Absolutely. क्योंकि जैसे कि एक्नॉलेजमेंट अगर आपने कर लिया कि जो हो रहा है उसके इसलिए हो रहा है, और अवेयरनेस क्रिएट किया कि मैं नहीं हूँ, कोई और है, एक साक्षी भाव अपने आप क्रिएट हो जाता है, एवरी मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड वो Absolutely. जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, मुझे लग रहा है ये एफर्टलेस हो जाता है। फिर यू नो नीड टू थिंक आई हैव टू फॉरगिव, वो क्रिएट ही नहीं होता है फिर। सो दैट लेवल ओनली हैपेंस, हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली देर इज ए टाइम आता है, अपने आप वो हो जाता है, लेकिन हमारे तरफ से हमारी जो कंफर्ट जोन है उससे भी बाहर निकल के हमको प्रैक्टिस में जाना बहुत जरूरी है। Oh yes. Absolutely perfect. See, I as you move question. higher in your, हाँ, सीरज जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक सेकंड आ रहा हूँ। As you move higher in the consciousness, then you become immune to pain and hurt. And अगर hurt नहीं हो रहा है, forgiveness की जरूरत कहाँ है, बताइए ना मुझे। Forgiveness की जरूरत ही तब पड़ रही है because I am hurt. If I am immune to hurt, if I don't give any power to anybody to hurt me, if I do not encourage any kind of suffering and misery in my life, where is the need to forgive? I am only radiating love, peace and joy to everybody. There is no question of hurt and there is no question of forgiveness. But that comes at a higher stage, जैसे अमित शाह जी ने कहा अभी, वो हायर लेवल पे आएगा। एक चीज इनिशियली ऐड तो करूंगा। आपको, हाँ, हाँ सॉरी जी, टू इंटरप्ट, एक चीज ऐड करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी हायर कॉन्शियसनेस में जाइए एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हट हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होते हैं। क्योंकि इमीडिएटली आपके जो प्रैक्टिसेस होते हैं, सारे जो अवेयरनेस होते हैं, वो इमीडिएटली डिलीट कर देते हैं। एब्सोल्युटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम ह्यूमन है तब तक ये सारे इमोशंस होंगे उसमें। दैट इज ऑल्सो द, वो पर्पजफुल होते हैं। एंड उसके ऊपर भी अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, देन ऑल्सो विल कम टू नो व्हाई इट इज हैपेंड विद इन इंस्टेंट मोमेंट। तो कोई चीज पर्पजफुल नहीं है, अगर गुस्सा भी आ रहा है तो वो भी पर्पजफुल है, लेकिन उसका जो हायर पर्पज है वो हमको देखना है, ना कि ईगो कनेक्टेड पर्पज। Absolutely right. So in the last session, we saw about the basic emotions and we saw the purpose and we saw what happens when we suppress it. ये सब हम बात कर चुके हैं, है ना? तो just emphasizing on that. Yes, absolutely right. So what you have said is absolutely perfect. Very good, Hamid Sahib ji. Thank you so much. Yeah. Yes, अनूप जी आपने रेज किया है। उससे पहले एक बार मैं सीरत मैम के पास आ जाऊंगा। सीरत जी, सीरत मैम, Yes. yes. Yes, Shashi. Yeah, I feel when we forgive somebody, uske saath forgetfulness, that's very essential. If I don't forget कि मैंने इसको माफ किया, ये मेरा ये चेंज हो गया, मेरा स्क्रीन चेंज हो गया कोई है। बात नहीं, आवाज आ रही है, बोलते रहिए। ओके, हाँ जी, ओके। एंड लेटिंग गो इज बेटर देन फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस दिल से नहीं हम भूल सकते कि मैंने इसको फॉरगिव किया, बट उसके द कमिंग बैक इज द सेम, उनमें चेंज नहीं आया। लेटिंग गो से भी बेटर है वॉक अवे। जो अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी बात मुझे पसंद नहीं है, उनसे वास्ता ही कम कर लो एंड यू वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। तो दैट इज इन माय हैंड। और कोई भी दृश्य अच्छा सुख में
होवे, दुख में होवे, we know it will pass, it will not remain forever. आज से 10 साल बाद की बातें भी हम भूल जाएंगे, कभी कष्ट हुआ, यस, पुरानी बात है, but forgetting is very difficult. Forgive anybody, but back of the mind you cannot say कि forget हो गया, कि उसने मुझे कष्ट दिया था, दिल से हम माफ नहीं कर सकते. Okay, let's acknowledge Sirat ma'am. Yes, that is your experience, Sirat ji. That's Let it absolutely walk okay. away. Huh. I I understand. broken like that close association, walk away, कम बोलो, प्यार से बोलो, and culture, what you say, it's your character, जो आप महसूस करते हो, but don't wait कि अगला आदमी भी चेंज हो गया है, वो भी अच्छी तरह बात कर, वो नहीं करेगा. एक बड़ा अच्छा है, why did you spill my coffee? उसके गिलास में कॉफी थी तो कॉफी गिरी, हाँ जी, अगर कुछ और होता तो और कुछ, बट दे आर सेइंग इट, वो खुद अंदर जल रहे हैं, उसका तो मुझे थोड़ा सा सेक मिला है, बाकी ही इज बर्निंग इनसाइड, yes, उसको अपनी बड़ी आग है. yes. तो हमको बल्कि उससे तरस खाना चाहिए, कितने कष्ट में है तो इसने हिम्मत की मुझे ये बात कहने की. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नहीं तो कभी नहीं कहता. हाँ, बिल्कुल सही. So thank you Sirat ji for sharing that. Yes. तो हाँ, तो ये भी एक तरीका है कि बोल सकते हैं कि वो बीमार है, तो अब बीमार है तो उसकी भाई हम दवा दारू नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको दुआएं दें, उसको गालियां ना दें. हाँ, दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. दैट्स ओके. बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज व्हेन आई फॉरगिव समवन, आई हैव टू मेक श्योर कि वो मेरे चित्त में नहीं है, वो मेरे दिमाग से भी हट गया है. लाइफ से हट गया अलग बात है, लेकिन दिमाग से भी हट जाना चाहिए. और अगर कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, आई एम फ्री फ्रॉम दैट इंसिडेंट ओनली व्हेन आई कैन लाफ इट ऑफ. किसी ने मेरे साथ बुरा किया, नाउ आई कैन थिंक अबाउट इट एंड से उसका संस्कार था, छोड़ो ना, मजे, आई कैन लाफ इट ऑफ, देन आई एम फ्री. अगर अभी भी गुस्सा है तो मैंने अभी भी पकड़ा हुआ है उसे, तो उसको अपने चित्त से फ्री करना है. दैट इज फॉरगिवनेस. एंड वंस इट इज फॉरगिवनेस इज देयर, फॉरगेटिंग भी हो ही जाएगा, बिकॉज यू विल, forgetful. दैट मेमोरी विल नॉट हर्ट यू, दैट विल नॉट हॉन्ट यू. तो सीरत मैम जी, आपने जो कहा आपकी तरफ से बिल्कुल सही है, लेकिन उसको सही तरीके से अगर हम प्रोसेस करें तो वो हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर Forget उसको that. लाइफ में लाना है, नहीं Forget लाना है, and उसको बाय बाय forget. करना है, ये सब हमारे बात की बातें हैं. शशि जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, टाइम है? हाँ जी, हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए. एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने माफ किया और हमको छोड़ना चाहिए, तो कभी कभी उसका जो मतलब मैं बोलूँ उसका कंटेक्स्ट जो है ना, वो एक हायर पर्पज के लिए होना चाहिए और हायर डिवाइन के लिए होना चाहिए. अगर मैंने किया, कभी कभी इनडायरेक्टली हम ऐसा करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे बेस बन के ना बाद में बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल ईगो क्रिएट करता है. कि अगर वो सरेंडर्ड नहीं है, वो माफ है ना, तो अगर एंकरिंग, इनर एंकरिंग प्रॉपरली डिवाइन सरेंडर्ड नहीं है, सो देन इट विल बी ए इशू इन फ्यूचर, व्हाट आई फील. तो इसके लिए वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम बहुत टाइम में देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग एक धीरे धीरे वो अलग ही मोड में आ जाते हैं, क्योंकि जैसा ज्ञानेश्वरी महाराज ने बोला कि सबसे बड़ा जो सांप है ना, वो 99 में है ना. तो सबसे बड़ा, अच्छा, वो चीजों सांप. को सबसे मतलब सांप सीढ़ी का जो खेल होता है ना, तो राइट. उसमें क्या होता है ना, सबसे 99 में बहुत बड़ा एक सांप होता है हाँ, और करेक्ट. वहां से फिर नीचे आ जाता है. नीचे आ तो जाता है. बहुत टाइम पे मैंने माफ किया, मैंने उसको कर दिया, इस तरह से चीजें हो जाता है ना, मैंने अपना चीज साफ कर लिया, इस तरह के थॉट्स धीरे धीरे क्या करते हैं ना, आगे चल के मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअल ईगो क्रिएट कर देते हैं, और वो एक बहुत बड़ा डेंजर हो जाता है जो हमारा हायर पर्पज को रियलाइज करने का, मुझे ऐसा यस, लगता है. यस, यस, दैट इज ट्रू, पॉसिबल. सो दैट इज वाई वी से जब तक सांस चल रही है तब तक अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करते रहिए, अपनी अपनी क्लींजिंग करते रहिए. देयर इज नो, इट इज अ जर्नी विच इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डेस्टिनेशन. तो कीप डूइंग दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग. आप जो योग साधना कर रहे हैं करते रहिए, अपने चित्त को साफ करते रहिए, क्योंकि हर रोज देखिए, अब रूम घर की भी तो सफाई करते ही है ना. एक दिन साफ ना करेंगे तो डस्टिंग करनी पड़ती है ना. नहीं करेंगे एक दिन डस्ट, तो अगले दिन मिट्टी आ जाएगी ना, डाइनिंग टेबल पे भी, टीवी पे भी आ जाएगा. तो जब बाहर ये हाल है तो चित्त का भी यही हाल है ना.
बाहर अगर नेगेटिविटी है तो लोगों से इंटरेक्ट करते करते नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएगी ना, कान से, आंख से, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से बाहर की नेगेटिविटी अंदर आ ही जाएगी। तो चित्त को तो साफ करते ही रहना है जब तक सांस चल रही है। और इस लाइफ फॉर्म के बाद अगले लाइफ फॉर्म में भी आएंगे तो वहां पे भी करते रहना है। तो ये तो आपकी एक जर्नी है, एंड जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। So let us look at it that way, and that will be fine. And let me now take sharing from Anup ji. Sorry, आपने बहुत देर से hand raise किया हुआ है. Please go ahead. शशि जी नमस्ते। नमस्कार। तो मैं एक आई वांट टू शेयर समथिंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कि सबसे पहले तो लाइक फॉरगिविंग इज अ मस्ट। ये हमारे सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में कहता है कि अगर आपको स्पिरिचुअल एलिवेशन करनी है, सो यू हैव टू फॉरगिव, और फॉरगिव भी ऐसा करना है कि बिल्कुल ही खत्म है, आपके चित्त से भी गया, सब कुछ गया और आप भूल गए। पर प्रैक्टिकली कई चीजें पॉसिबल है। जैसे बचपन में किसी ने हमारी पेंसिल ले ली, तब वो बहुत बड़ी चीज थी, आज वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। ये किसी ने बोतल चुरा लिया, हमारा पानी पी लिया, तो वो अब इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो आप उसको भूल के नाउ यू इनफैक्ट लाफ इट आउट इन द ग्रुप्स। पर कई चीजें हैं जो फॉरगिव या फॉरगेट करना बहुत ही मुश्किल है। लेट्स से somebody is hurt your kid, या लेट्स से somebody is embezzled your money which was very critical, या कुछ भी हो, या किसी ने धोखा दिया, ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, और उसका जो परिणाम है वो आपकी तरफ बहुत नेगेटिव हो गया और वो चले जा रहा है। व्हेन यू गेट समथिंग पॉजिटिव इन लेटर लाइफ, देन यू टेंड टू फॉरगेट और फॉरगिव। पर अगर वो चले जा रहा है, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हो गया, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, कहीं हस्बैंड वाइफ का रिफ्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, और वाइफ एंड दे बोथ एंड अप सेपरेटिंग, वाइफ की और लाइफ हेल हो गई, हस्बैंड की लाइफ और हेल हो गई, तो वो फॉरगिव और फॉरगेट नहीं कर पाते, चाहे आप कितना ही उनको काउंसलिंग कर लीजिए। अगर वो मुंह पे बोल भी देते हैं कि ठीक है चलो मैं उसको भूल गई, पर फिर कोई इंसिडेंट होता है तो फिर वो याद आ जाता है, वो होता है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट वेरी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि विच वी डू ऑन द वे फॉरगेट एंड फॉरगिव, बट कई चीजें बार बार याद आती हैं कि आपने किसी को फॉरगिव कर दिया, फिर उसने अगले दिन चांटा मार दिया, फिर आपको याद आ जाएगा। So it is very difficult also at times for few things. So 99%, 98% आप कर लोगे, वो 1-2% कहीं ना कहीं रह जाता है। जैसे सीरत मैम ने भी कहा कि कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड रहता ही है। पर एक मैं एक्चुअली आई वेंट वेरी डीप इनटू माई सेल्फ सेइंग कि जो इंसिडेंट्स हो गए, जो मैंने खुद करे थे लाइफ में, या मेरे से उन हालात में मुझे करने पड़े, तो अब तो उनसे ना मुलाकात होगी, या वो मर चुके, या इंसिडेंट भी खत्म हो चुके। तो व्हाट द कॉलिंग दैट आई रिसीव्ड वाज कि as soon as you recall any of those incidents, deja vu हो चाहे कुछ भी हो, just say a short prayer and just feel calm। तो एक्चुअली अगर मेरे को कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है और मैं शॉर्ट प्रेयर करके बोलता हूँ कि आई फॉरगिव, और somebody told me कि जस्ट थ्रो इट इनटू द यूनिवर्स, वो ब्लैक होल में चला जाएगा, वो रिसाइकलिंग एरिया है पूरे यूनिवर्स का। तो आई डू एक्चुअली फील काम, सो दिस इज समथिंग व्हिच आई प्रैक्टिस की। वेरी गुड, अगर वेरी गुड। सी एज लॉन्ग एज इट इज क्लींजिंग योर चित्त, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, व्हाटएवर प्रैक्टिसेस यू आर फॉलोइंग। चाहे आप नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फॉरगेट नहीं हो पाती है। दिस इज फॉरगेट व्हाट आई हैव नहीं भी आल्सो हो, एक्सपीरियंस। फॉरगेट नहीं भी हो, इट शुड नॉट बी हर्टिंग यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, वो आपको क्योंकि मेमोरी लॉस फाइनेंशियली, तो नहीं हुआ ना, तो इमोशनली, याद तो रहेगा वो इंसिडेंट, बट उसका पिंच नहीं लगना चाहिए, दैट्स ऑल। लुक एट इट दैट और वे कई फर्स्ट। बार, हाँ, और और कई देन ऐसे ही बार सेड, आई, एक सेकंड सर, एक सेकंड। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट शुड नॉट बी पिंचिंग अस इन आवर, हमारे चित्त में नहीं रहना चाहिए, नंबर 1। इट शुड नॉट बी हर्टिंग अस, इट शुड नॉट बी फिलिंग अप विद पॉइजन, दैट इज नंबर 1, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फॉरगिवनेस, करेक्ट। सेकंड चीज जो आपने बोला कि उनको वापस माफ करना है, नहीं करना, अगर कंटिन्यूएशन है रिलेशनशिप में देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज अगर रिलेशनशिप जैसे क्लोज रिलेशनशिप है, रोज उनसे मिलना है, तब आपको कुछ उसमें कार्मिक अकाउंट है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, तो आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, लगातार हीलिंग करनी पड़ेगी टू रीच ए स्टेज वेयर यू कैन बी एब्सोल्युटली नॉट गेटिंग हर्ट, करेक्ट। दैट वो ऑनगोइंग भी हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, या पेरेंट्स हैं, या ब्रदर्स हैं, ऐसे भी रिलेशनशिप में आपको कंटिन्यूसली रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो
आपकी स्पिरिचुअल साधना आपको वो मसल डेवलप करने देगी जिससे कि आप उसे फॉरगिव कर सकें और फ्री हो सकें। मेमोरी लॉस नहीं होगा तो यू मे नॉट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, but it should loosen the grip. It should not be hurting you. That is most important. है ना? And then later on, there will be some stage when you have come to that advanced level that you can laugh it off. Yeah. So it's not that difficult. Yes. It is not that easy also, but it's not that impossible also. With spiritual sadhana, you can do that. Yeah. Yes. Now you can go ahead. Anything else you want to share? Anupji? Yes, Shashi ji. Huh. Suppose I surrender to my guru and I see my guru or I see Brahm in everybody, then I feel this is the universe का ही खेल चल रहा है। बिल्कुल है। हे भगवान, आप इतना नीचे आके मुझे सुधारने के लिए यू कम सो लो डाउन टू माय लेवल, यू आर टेलिंग मी दिस। तो कोई बात बुरी लगेगी नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू दैट Perfect. सुपर बहुत एनर्जी बढ़िया। यूनिवर्स इज डूइंग। एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है, लाइफ आपको कुछ सिखा रही है, सीख लो, आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल सही है। यस, हाँ, either it gives me joy or it teaches me a lesson. Yes, yes, absolutely perfect. Very good. Let's acknowledge Siraj ji and Anup ji. You still have a raised hand. You want to share something? Otherwise, I will have to close the session. So please go ahead. मेरा बस अंडरलाइन पॉइंट यही है कि many times I have counseled people, children, my children, तो जब तक मेच्योरिटी नहीं आती, people keep saying how do I forget, बार बार मेरे को याद आता है, ये आता है, वो आता है, the hurt that I felt, even चाहे कईयों के ब्रेकअप्स हो, कुछ हो, या किसी ने कुछ छोटी सी भी चीज भी बोल दी, और जैसे कई लोग होते हैं उनको बहुत बड़ी चीज बोल दो तो उनको फर्क नहीं पड़ता, कई होते हैं जो बात का बतंगड़ बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज डू एग्जिस्ट, और मेरा बस यही कहना है कि इफ यू आर अ काउंसलर टू समबडी, इफ यू आर अ गुरु टू समबडी, जस्ट स्टिक टू द पॉइंट कि ओके, फॉरगिवनेस इज अ वेरी बिग वर्च्यू फॉर spiritual growth, and if the aim is spiritual growth, then try to forgive. But if the person cannot forgive, then जैसे सीरत मैम ने बिल्कुल सही बोला है कि उस कंडीशन से ही बाहर आ जाओ, ताकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो शांति मिले। फाइनली पीस इन लाइफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, आप उसी Anup ji, but you are missing सिचुएशन, the major point. आपको मेजर पॉइंट यहाँ पे मिस हो रहा है कि फॉरगिव नहीं किया तो हर्ट को लेके ही जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे, आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ तो भी हर्ट रहेगा, पैसिफिक ओशन के अंदर घुस जाओ तो भी हर्ट रहेगा। हर्ट को हटाना जरूरी है, फॉरगिवनेस जरूरी है, फॉरगेटिंग जरूरी नहीं है। फॉरगेटिंग इज ए चॉइस लेटर ऑन। फर्स्ट यू नीड टू फॉरगिव सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस, तो यू आर उस फ्री। सिचुएशन से हटके भी आप फॉरगिवनेस की नहीं प्रेयर कर कर सकते सकते हो सर, ना। वो रहेगा, चित्त में रहेगा आपके, आप कहीं भी चले जाओ। अगर आपके अंदर पेन और हर्ट है तो आप फ्री नहीं हो, आप सफरिंग और मिजरी में रहोगे, आप वो कई जन्मों तक लेके बैठ सकते हो। पास्ट लाइफ थेरेपी इसीलिए दैट आई कराते हैं ना। एग्री, अगर इफ यू डोंट क्लेंस इट इन दिस लाइफ, इट हाँ, विल कम बैक इन मल्टीपल लाइव्स, दैट आई तो एग्री। फॉरगिव करना जरूरी है। फॉरगेट विल, इट्स ए चॉइस, यू वांट टू लाफ इट ऑफ, यू वांट टू रिमेंबर इट, that doesn't should not pinch you. Forgiveness is more important than forgetting. Understand it that way, correct? And if you want, we can take this on one-on-one later on. आप कल बात कर लीजिए मेरे से किसी भी शेड्यूल टाइम पे, ठीक है जी। अभी मेरे को सेशन क्लोज करना होगा, इट इज मोर देन 15 minutes ओवर टाइम। हाँ, आई डोंट वांट टू कीप पीपल लेट। सो फाइनल टेक, गुरकीरत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yes, we continue next time. Yes. There are many thoughts coming which Okay, fine. We will do that next time. clash. Yes. Very good. It Thank you, was a thank you. very good subject and it was very good carried forward. I liked it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. सर एक Yes. चीज और डाल रहा हूँ मैं, हाँ। मतलब एक चीज ऐड कर रहा हूँ सर। व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर ओन नेचर ना, we understand the other. So if we have full awareness, if we have full awareness of our own nature, and we actually know the other, why the other person is acting the way she is acting, जब हमें अपना नेचर समझ आ जाए ना, तो दूसरा बंदा चाहे अटैक कर भी रहा है, तुम्हें उसकी इंटेंशन भी नजर आती है, वो क्यों कर रहा है, उसकी पूरी मेमोरी नजर आती है, सब कुछ नजर आने लग जाता है। Okay. तो यू नेचुरली
do not really, you know, really give them something back. Naturally, you just, because तुम समझ आ रहा है यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ यू नो ईगोइक है एनर्जी, जिसकी वजह से उसने ऐसे एक्ट किया। इसमें उसकी गलती है ही नहीं। Yes. Naturally everything is happening. Yes. So if you have your own understanding of your own nature ना, और clarity हो, तो beautiful thing happens on their own. Absolutely. Perfect. Very That's good. my And in a lighter vein, addition. अमित जी का एक फेवरेट डायलॉग था जो उन्होंने पहले एक बार सेशन में कहा था, इस बार वो अगर आपकी गाय खोल के ले गया है तो पिछले जन्म में आप उसकी गाय खोल के ले गए होंगे। हाँ, Yeah. तो वापस लेके जा रहा है अपनी गाय, जाने दो ना। Very well said. तो वो भैंस was the भैंस या गाय ले लो, एक ही बात है। I prefer cow. Yes. All right. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. And if it is okay with everybody, we will continue the session next week also. Yes. And we'll post that in the group. So thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. We meet again next week. Till then, Ham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Good night. Bye-bye. Thank you. Thank you.